إلا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سب مل کر درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. صدق اللہ العظیم. آج کی تراویح میں 11واں پارہ اور 12ویں پارے کا پہلا حصہ، پہلا ربع وہ پڑھے گئے، تلاوت کیے گئے. اس پارے میں سورہ توبہ کا ایک حصہ شامل ہے. اس کے بعد سورہ یونس شامل ہے. سورہ یونس کے بعد سورہ ہود اس کا آغاز ہو گیا. انشاءاللہ کل وہ مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد ہم سورہ یوسف شروع کریں. سورہ توبہ کا جو حصہ ہے اس میں وہ قصہ چل رہا تھا. غزوہ تبوک چونکہ بہت بڑا مارکہ تھا اسلامی تاریخ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور بہت بڑی قربانی دی اہل ایمان نے اس موقع پر. موسم کی شدت، فصل کی تیاری، اور دشمن بہت مضبوط اور طاقتور. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک انقلابی قیادت فرمائی مسلمانوں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہیں ایمان والے. یہ لوگ کون ہیں؟ ایمان والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار. تو یہ مادی طاقتوں یا مادی جو وسائل ہوتے ہیں یا جنگی آلات اور وسائل ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی پر. ان کا اصل ہتھیار اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ ہے. اس موقع پر ہوا یہ کہ کچھ اصحاب ایسے تھے جو تھے تو مخلص مسلمان، لیکن وہ ذرا سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. لیکن آگے جو حالات پیدا ہو رہے تھے تو اس میں اتنی سستی بھی برداشت نہیں. کچھ لوگ تو تھے ایسے ہی جو جن کے دل میں نفاق تھا. تو منافقین آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے یہ ہماری وجہ تھی، یہ ہماری وجہ تھی. حضور انہیں کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن وہ لوگ جو مخلص اصحاب تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایسے لوگ، 3 ایسے اصحاب کا ذکر ملتا ہے جو مخلص تھے، لیکن کسی وجہ سے بہرحال وہ پیچھے رہ گئے، شریک نہ ہو سکے. ان کی توبہ کا واقعہ چل رہا ہے. شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذرا پہلو تہی فرمائی، توجہ نہیں کی، اور پھر وہ بائیکاٹ کا ایک حکم جاری ہوا، 50 دن چلتا رہا. پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کا اعلان کیا. اور یہ اہل ایمان کی ایک ٹریننگ تھی، ان کی تربیت تھی کہ بھئی اگر جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اس طرح کے امتحانات میں اس کا استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ دین کی دعوت تو آگے نہیں پھیل سکتی. تو یہ سارا واقعہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آخری رکوع ہے اور آخری آیات ہیں سورہ توبہ کی.
इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई है कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कि ये जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये तुम ही में से हैं, और आपका जो लोगों का नुकसान है वो इन्हें बहुत इनके ऊपर भारी होता है, और तुम्हारी फलाह के बारे में, कामयाबी के बारे में बड़े ही ये हरीस हैं, और अहले ईमान के साथ शफीक और रहीम हैं। और अगर ये लोग आपकी बात नहीं सुनते तो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके सामने ये ऐलान कर दें कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, और वो रब्बे अर्श अजीम है। यानी कि ये एक लीडरशिप की वो एक सिफत है कि पूरी दुनिया भी दूर भागेगी ना तो भागती रहे, मैं अकेला अल्लाह के रास्ते में चलूंगा और इसी रास्ते पर कायम रहूंगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हर मौके पर उस बेहतरीन क़यादत का नमूना पेश किया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाया करते थे कि हर जंग के मौके पर हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो ऐन जंग जब जोबन पर होती तो सबसे आगे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु काना अशजअन नास, सबसे ज्यादा बहादुरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग करते हुए। तो इसके साथ ही सूरह तौबा मुकम्मल हुई। अब सूरह यूनुस है। तो ये पिछली दो सूरतें जो थी वो मदनी सूरतें थी, जिनके बारे में तफसील से बात कर ली थी हमने। इससे पहले जो सूरतें थी शुरू से वो मक्की सूरतें चलती रही, फिर मदनी सूरतें दो आ गई, वो हमने पढ़ ली। अब जो अगली सूरतें हैं, अब ये ज्यादा बड़ी सूरतें, बड़ी से मुराद है कि अब ज्यादा जो सूरतें कई सिपारों तक चलेंगी, 6-7 सिपारों में जो सूरतें आएंगी वो सारी मक्की सूरतें। अब मक्की सूरतों का एक वो पूरा दौर है जो चलेगा, एक सीरीज है मक्की सूरतों की, वो चलती रहेंगी और फिर कभी मदनी आ जाएंगी, कभी मक्की आ जाएंगी। और आपको पता है कि 114 सूरतें हैं, 114 में से 86 सूरतें मक्की हैं और 28 सूरतें मदनी हैं। और आखिरी पारे की अक्सर छोटी सूरतें भी मक्की सूरतें हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लंबी सूरतें अब खत्म हो गई, अब निस्बतन छोटी सूरतें आती जाएंगी। ये कुछ 100 आयात से करीब करीब ये सूरतें हैं जो हम अभी आज पढ़ेंगे। इसके बाद सूरतों की जो हुजम है, ये तादाद है आयात की और रकूआत की, वो जरा छोटी होती जाएगी, आस्ता 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 छोटी सूरतें शुरू। तो सूरह यूनुस जो है, जो कि मक्की सूरत है, और ये दोनों सूरतें हैं, सूरह यूनुस और सूरह तौबा, जो आज जो हमारा मज़मून है, जो हमने सुनी है तिलावत। और ये दोनों सूरतें एक ही दौर की, मुफस्सिरीन के मुताबिक इनके जो दौर है वो एक ही, यानी मक्के का आखिरी दौर, आखिरी बिल्कुल आखिरी साल में, उससे जरा पहले का अंदाजन कोई हिजरत मदीना से कोई 1.5-2 साल पहले ये वाली दोनों सूरतें, इनका नुज़ूल होता है। और इनके अंदर जो बुनियादी एक मजमून अगर समझे ना इन दोनों सूरतों में, वो ये है कि दो बातें इन सूरतों में आपको मिलेंगी। एक, तज़कीर बि आला इल्लाह, अल्लाह की नेमतों का जिक्र मिलेगा। अल्लाह खालिक है, मालिक है, राजिक है, उसने ये पैदा किया, उसने ये पैदा किया, उसने ये नेमतें तुम्हें दी, उसने ये नेमतें दी, उसके कमालाते कुदरत कितने हैं, और अल्लाह की इंसान की तख्लीक से लेकर बेशुमार चीजें। और उसका दूसरा मजमून इन सूरतों में जो आपको मिलेगा, उसको कहते हैं तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, यानी तारीखी वाकयात, नबियों के वाकयात, और वो भी इबरत के तौर पर, ताकि ये जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोग बात नहीं ना मान रहे, हजूर को दावत देते हुए 11 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, कुरान सुना रहे हैं, किरदार पेश कर रहे हैं, लेकिन हालत ये है कि मुखालफत बढ़ती चली जाती, लेकिन दूसरी तरफ दावत भी अपने रंग दिखा रही है
تیزی سے لوگ ایمان کے راستے میں شمع رسالت کے پروانوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کو بڑی پریشانی ہے، جو بڑے بڑے سردار ہیں نا مکہ کے، ان کو بڑی پریشانی ہے اس بات کہ ہمارے گھر کے اگر 10 افراد ہیں تو 4-5 مسلمان ہو گئے، اب ان کو کیا کہیں ہم۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ آگے جب صورتیں چلیں گی نا تو یہ مضمون مزید واضح ہوگا کہ اس چلتے ہوئے معاشرے کی روش تو تھی، اس کے مقابلے میں اہل ایمان نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے الگ نمونہ پیش کیا، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے رویے کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے تعلق باللہ کے اعتبار سے۔ وہ معاشرے کی روش اور تھی، اور ان کا کردار اس سے مختلف تھا۔ یہ جب ہم 18ویں 19ویں پارے میں جائیں گے نا، وہاں بھی یہ صفات اللہ رب العزت نے کھل کر تفصیلاً بیان فرمائے۔ تو یہ جو مضمون ہے سورہ یونس کا، اس کے اندر یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ لوگوں، یہ جو قرآن ہے نا، یہ بڑی محکم اور حکمت والی آیات، قرآن کے الفاظ یقین کریں چونکہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر بڑی معنویت پائی جاتی ہے، بڑی گہرائی پائی جاتی ہے۔ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا حکیم، یہ دونوں صورتوں کے شروع میں استعمال ہوا ہے، سورہ یونس کے شروع میں بھی اور سورۃ ہود کے شروع میں بھی۔ تلک آیات الکتاب الحکیم یہاں استعمال ہوا ہے، سورہ ہود کے شروع میں استعمال ہوا ہے کتاب احکمت آیاتہ۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بڑی لائٹ سے ہو، بہت جمی ہوئی مضبوط آیات۔ اور پھر دوسرا ہے کہ یہ حکمت پر مبنی ہیں، تم ان کی جتنی مرضی مخالفت کر لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آیات کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، دانائی پوشیدہ ہے، کامیابی پوشیدہ ہے۔ وہ ساری چیزیں جو انسان کے لیے فائدے مند ہیں ان کا ذکر ہے، اور وہ ساری چیزیں جس میں انسان کا نقصان ہے وہ ساری ان آیات کے اندر موجود ہیں۔ اکان للناس عجبا، لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے جو وہی بھیجی کو لانے والا ایک انسان ہے، ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ اب اعتراض کیا تھا؟ یہ اعتراض پیچھے بھی گزرا ہے، ہم نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ آخر یہ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وحی لانے والا ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو الگ سے کوئی مخلوق ہونی چاہیے، یا فرشتہ ہونا چاہیے، یا فرشتہ ساتھ آنا چاہیے۔ کہ آگے ایک آیت آئے گی 25ویں پارے میں، تو اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ یہ جو دو بڑے شہر تھے مکہ اور طائف، ان میں سے کوئی اور آدمی نعوذ باللہ نہیں ملا تھا اللہ کو؟ ایک غریب خاندان میں پیدا ہونے والا یتیم بچہ، اس کو چن لیا۔ اللہ نے جواب دیا اس کا کہ اللہ یجعل رسالہ، اللہ جس کو چاہے رسالت کے منصب پر سرفراز فرمائے، یہ اللہ کی ڈومین ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے چنتا ہے۔ اللہ نے تمہاری خواہش کی طرح تو یہ منصب عطا نہیں کرنا، اللہ نے تو وہ جو شخصیات جن کا انتخاب کیا ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ مضمون ہے، اس کے ساتھ یہ اللہ کی خلاقیت اور اللہ کی جو نشانیاں اور اللہ کا رب ہونا اور اللہ کے یہ ساری چیزیں، اور ساتھ ساتھ درمیان میں آخرت کا مضمون چلے گا کہ لوگوں آخرت کو کبھی بھول نہ جانا، اور رات اور دن کے اختلاف میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات سے دور بھاگتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، وہ برے انجام کا شکار ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو اس طرح زندگی کو گزارتے ہیں کہ جنہیں امید ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، اور ان کی دنیا اس طرح گزرتی ہے کہ رب کی رضامندی چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت سرفرازی کے راستے پر رکھے گا۔
ये सीधे रास्ते पर चलेंगे। और ये सारी बातें चलते चलते काफिरों का जिक्र हो रहा है, उनके एतराज़ात का जवाब दिया जा रहा है। फिर अल्लाह इस कुरान की शान बयान फरमाते हैं सूरह यूनुस के अंदर, या अय्युहन नास, ए लोगों जरा तवज्जो करो, कद जाअतकुम बय्यिनतुम, अरे या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारी रब की तरफ से एक नसीहतनामा आया है। यानी कुरान को अल्लाह ने फरमाया मौइज़त, ये नसीहतनामा है, और ये ऐसा बरकत वाला नसीहतनामा है, शिफाउल लिमा फिस्सुदूर, जो सीने के अमराज के लिए शिफा है। कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, दुश्मनी हो, बुरे ख्यालात हो, ये तीनों के अमराज जो हैं, रूहानी अमराज, उनके लिए शिफा है। शिफाउल लिमा फिस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये हदायत है और रहमत है ईमान वालों के लिए। और ये इतनी बड़ी दौलत है, इसके मुकाबले में, कुरान के मुकाबले में सारी दुनिया माल जमा कर ले, वो इतना बड़ी दौलत नहीं है जितना कुरान बड़ी दौलत है। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये अल्लाह का फजल भी है, उसकी रहमत भी है, और सब लोग जो जमा करते हैं उससे बेहतर की तरह कुरान की शान बयान करते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बरारा। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग अल्लाह वाले होते हैं, खास होते हैं लोग। साहबा ने पूछा मन हम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होते हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम अहलुल कुरान, वो कुरान वाले होते हैं। अहलुल्लाहि व खासतु, ये अल्लाह वाले होते हैं और अल्लाह के खास लोग होते हैं। इनका प्रोटोकॉल ही अलग अल्लाह ने रखा है, कुरान वाले। और कुरान के साथ जुड़ने वाले लोग, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में इज्जत से सरफराज करता है, जो कुरान से जुड़ते हैं। और उसके बाद फिर दो नबियों के यहाँ वाकयात आएंगे अपनी अल्लाह सारी निशानियों के बाद। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जरा मुख्तसर जिक्र है, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जरा तफसीली जिक्र। और फिर वो फिरौन के गर्क हो जाने वाली आयत, वो इस सूरत के अंदर मौजूद है कि वो जो मुकालमा हुआ ना, फिरौन ने जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर तो गुजर गया समुंदर से, और समुंदर में रास्ता बन गया, और उसने भी गुजरने की कोशिश की। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गुजर चुके थे, उससे पहले वो, हम जब वो आयत आएगी वहां वो पढ़ेंगे। तो यहाँ जो आयत आई है वहां ये है कि जब फिरौन ने देखा ना कि वो समुंदर जब आप मेरी तरफ बढ़ने लगा है, पानी जो रुका हुआ था ऐसे पहाड़ की तरह पानी खड़ा हो गया था, और ऐसे जब वो मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, फिरौन गुजर रहा था, तो अब पानी ने ना वो दीवार अपनी पहाड़ हटाना शुरू किया। तो उसको पता चल गया अब ये पानी कहाँ आएगा, हमारी तरफ, और बहुत सामने है। उस वक्त उसने कहा कि अब मैं तौबा करता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं। जब उसने ये कहा ना कि अब मैं ईमान लाता हूं, तो उसको कहा गया आल आना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब तो ईमान लाने का कोई फायदा नहीं, तुमने क्या क्या नहीं किया दुनिया में, खुदाई के दावे किए तुमने, और इस खुदाई के दावे के बाद अब तुम कहते हो कि मैं ईमान लाऊंगा। याद रखो अब ईमान लाने का कोई फायदा नहीं। फल यौम नुनज्जीका बिबदनिक, ये कुरान वाली जरा आयत जरा देखें, मुजज़ा है कुरान का ये आयत भी। अल्लाह ने उसे फरमाया कि हम तेरे बदन को बाकी रखेंगे। फल यौम नुनज्जीका बिबदनिक, तेरे बदन को क्या करेंगे हम, बाकी रखेंगे। दुनिया में तेरा बदन बाकी रहेगा। लितकून लिमन खल्फक आया, ताकि बाद वाले आने वाले लोग तेरे जिस्म को देखते रहें मुर्दा हालत में पड़ा है और ये खुदाई का दावा करने वाला, और अपने अब जिस्म पर बैठने वाली मक्खी को उठाने के भी काबिल नहीं रहा। हजरात वो आपको पता है ये सारा कुछ मौजूद है आज दुनिया में, इजिप्ट के अंदर है। लेकिन अजीबो गरीब बात यह है कि कुरान जब नाजिल हुआ
उस वक्त लोगों के सामने वो नहीं थे। तकरीबन 150 बरस बाद कुरान के नाजिल होने, एक फ्रांस की जो आसार कदीमा की टीम है उसने वो सारा कुछ शहर नीचे से जब खुदाई की तो वहां से ये वाली जो जिसको हम मम्मियां कहते हैं फिरौन की, ये जो वहां से निकली थी और फिर वो तारीखी शहादतें साबित हुई कि ये वही फिरौन है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के वो पीछा किया था और वो गरक हो गया था, ये वही है और आज वो वहां मौजूद है। उसका ये कुरान का ये ऐलान है कि वो मौजूद रहेगा और वो मौजूद है। इसी तरह इससे पता चलता है कुरान जो बात कहता है वो सच साबित होती है, सच्ची बात है, उसमें हकीकत है इंसान के लिए। इस तरह ये सारी गुफ्तगू चलते चलते आखिर में ऐलान है कि अल्लाह का दीन मुस्तकिम है, कायम है, पक्का है, उसमें काफरों के कहने पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कोशिश थी, यहाँ पीछे वायद गुजरी हैं कि कुछ हमारी मान लो कुछ अपनी मान लो, कंप्रोमाइज करके कोई मिक्सचर सा निजाम बनाते हैं। तो फरमाया मैं कौन होता हूँ चेंज करने वाला, ये मैं वही दावत दूंगा जो अल्लाह ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे कहने पर इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का भी इशारा तन जिक्र हुआ और उसके साथ ये सूरत मुकम्मल हो गई। सूरह हूद जो है उसमें जरा समझ लें कि सूरह यूनुस में अल्लाह की कुदरतों की निशानियां ज्यादा थी, जबकि सूरह हूद में नबियों के तारीखी वाकयात ज्यादा है। यहाँ जो है ये पहला, इसमें हम सूरतुल आराफ में नबियों के हालात तफसीली पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब ये दूसरा मौका है सूरह हूद में जहां नबियों के तफसीली हालात मौजूद हैं। और यहाँ पर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का पहले इजमाली जिक्र हुआ था पिछली सूरत में, यहाँ जरा तफसील में जिक्र हुआ। और उसके बाद फिर तरतीब जो कुरान की है वो यही है कि पहले जिक्र होता है कौम आद का, उनकी तरफ हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए, रसूल बनाकर। फिर कौम समूद, उनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पे। और उसके बाद कौम शुएब का जिक्र होता है, फिर दरमियान में कौम लूत का जिक्र होता है, और उसके बाद जो जिक्र होता है वो फिर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है। तो ये एक तरतीब है कुरान की, और यहाँ भी वो तफसील बताई गई। और इसमें ज्यादा जिक्र उन, जिसको मैंने कहा कि सैयद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में, कि इसको कहते हैं तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, ये जो तारीखी वाकयात हैं उनकी रोशनी में उनको दावत दी जा रही है कि लोगों वो पिछली कौमें जो तुम्हारे इर्द गिर्द आबाद थी, तो ज्यादा दूर नहीं थी, और इनके पास बड़ी कुव्वतें थी, बड़ी ताकतें थी, पहाड़ों को ये तोड़ के इसमें अपने घर बना लिया करते थे। तो याद रखो कि अब तुम अगर आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करोगे तो जैसे उनका अंजाम हुआ था वैसे ही अंजाम तुम्हारा हो जाएगा। तो ये नबियों का तफसीली जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इंसानों के दो ग्रोहों का जिक्र फरमाया, फमिनहुम शक़िय्युम व सईद। कुछ लोग बदबख्ती के रास्ते पर हैं, कुछ खुशकिस्मती के रास्ते पर हैं। फअम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार, ये जो बदबख्त लोग हैं वो आग वाले हैं। और वअम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्ना, जो सआदतमंद हैं वो जन्नत में जाएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें वो जो सारे अजाब आए और अजाब का कूड़ा बरसा लोगों पर मुख्तलिफ अंदाज में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को ऐसे बस्ती को उठाया, तो हमें लूत का अजाब है ये, जअलना आलियहा साफिलहा, ऐसे उनकी बुलंदी को पटक कर नीचे तबाह बर्बाद कर। और इसी तरह दीगर कौमों के ऊपर जो अजाब आए, नूह अलैहिस्सलाम पर जो अजाब आया पानी के हवाले से, और जलजले आए, और ये सारे जो अजाब हैं उनका जिक्र किया है। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी यहाँ मौजूद है, और बुढ़ापे की उम्र को अल्लाह ने जो उनको औलाद दी उसका जिक्र भी यहाँ मौजूद है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों का कलेक्टिवली जिक्र किया है कि देखो लोगों, इनकी कौमें, इन्होंने अल्लाह की निशानियों को नहीं देखा, अल्लाह के पैगाम को नहीं जाना, और तबाही और बर्बादी का रास्ता इख्तियार किया, तो बिल आखिर इनको कामयाबी नहीं मिल सकी, जलीलो ख्वार हुए, बर्बाद हुए। और आज लोगों तुम्हारी
कितनी खुशबख्ती है कि तुम्हारे दरमियान कौन आया है, आखिरी नबी फातिमुन नबीयीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम तुमको सारे नबियों के वाकयात सुनाकर तुम्हें समझा रहे हैं बात। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो पैगंबरों के किस्से जो हम तुम्हें सुनाते हैं, ये वो चीजें हैं जिनके जरिए अल्लाह तुम्हारे दिलों को मजबूत कर रहे हैं और उनके अंदर तुम्हें हकीकत का इल्म मिला है और इसमें नसीहत मौजूद है और ईमान लाने वालों के लिए बड़ी निशानियां मौजूद हैं। और ईमान जो ईमान नहीं लाते तो उनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर चलो और हम अपने तरीके पर चलेंगे, तुम भी इंतजार करो हम भी इंतजार करते हैं। और आखिरी आयत जो सूरह हूद की है, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, सारे जो गैब है ना आसमानों के और जमीन के, वो अल्लाह के पास। व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लु, तमाम मामलात में लौट कर अल्लाह की तरफ ही जाना है। तो तुम्हारा रास्ता क्या होना चाहिए, फअबुदहु, कि उसकी बंदगी को इख्तियार कर। बंदगी तीन तरह की होती है, पूजा और परस्तश, अतात और फर्मा बरदारी और गुलामी। ये तीनों दर्जात में बंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी। फअबुदहु, उसकी बंदगी करो, व तवक्कल अलैहि, और उसी पर भरोसा करो। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो तुम करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं। हजरात, यहाँ तक ये सूरह हूद मुकम्मल हो गई। हमने ज़ाहिर चीदा चीदा चीजों को ही पढ़ा है और एक बैकग्राउंड और पस मंजर उसको देखा है। इंशाअल्लाह कल जब हम पढ़ेंगे तो कल इंशाअल्लाह हम कुछ हिस्सा अभी तरावी में पढ़ा जाएगा इस सूरत का, तो जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ये सूरह यूसुफ का आगाज हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ का मुताला भी कल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफضलिका अम्मन सिवाक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, रोज़ों को कबूल फरमा, हसनात को कबूल फरमा। अल्लाह तमाम परेशानियों से निजात अता फरमा। कर्ज में मुब्तला है अल्लाह उनको कर्ज से निजात अता फरमा, जो परेशानियों में है अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा। हमारे फलस्तीनी भाई बहनों बच्चों पर अल्लाह अपनी रहमत फरमा, अल्लाह उन्हें जुल्म से निजात अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, बीमारों को सेहत कामिल आजिल नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन।